कर चुके हैं. Today we are going to talk about the price effect in detail and how what actually constitutes price effect. Price effect में क्या क्या चीजें include होती हैं. We'll be specifically talking about the income effect and the substitution effect, and then explain and understand the price effect in as a whole. हमने बात करी थी, suppose यहाँ पे कोई commodity है. We've been taking the example of pizza and Pepsi, so let's stick to that. We have pizza on the x-axis and Pepsi on the y-axis. And let's say that the price of the commodity Pepsi changes. हम बोल रहे हैं कि Pepsi का प्राइस जो है मार्केट में फॉल कर रहा है और इस प्राइस चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या क्या पॉसिबल फर्क पड़ सकता है. सो if the price changes, then जो हमारी budget line होती है, which is price of Pepsi into quantity of Pepsi plus price of pizza into quantity of pizza should be equal to the total income. This is the budget line, and if price of Pepsi is falling, then our budget line will somehow look like this. अगर Pepsi का price fall हो रहा है तो with the same level of income you can now consume more Pepsi. अगर आपको सारा income Pepsi पे spend करना हो, then you will consume more of Pepsi if the entire income is being spent, because the price of Pepsi is falling. So the budget line will tilt in this direction and you will notice slope change हो रही है क्योंकि prices change हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे budget line का slope effect हो रहा है. Now suppose this was the initial equilibrium. ठीक है, let's say that the new equilibrium point is attained at this point where you are consuming more of Pepsi. This is the initial equilibrium point और ये आपका नया equilibrium point है. You will notice that at the new equilibrium point you are now consuming more of Pepsi. So basically price के change की वजह से पिज्जा और Pepsi के consumption पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं. That is called as the price effect. I am saying that this price effect can further be broken down into two effects. One is called as the income effect and the other is called as the substitution effect. What do we mean by these two effects? Income effect का क्या मतलब होता है? Suppose price of Pepsi has fallen. ठीक है, यहाँ पे हमारे सिनेरियो में Pepsi का प्राइस फॉल कर रहा है. Now because of this fall in price of Pepsi, you as a consumer will feel that your income has increased. In a way, although आपकी income increase नहीं हुई है, लेकिन because a certain commodity has become less expensive, a certain commodity has become cheaper, you will have a feeling that in fact your income has increased because now you will have some extra income जो आप अपने consumption पे spend कर सकते हो. Suppose आपके पास initially 1000 rupees as income थे और Pepsi का price था $10. $1000 income थे और $10 Pepsi का प्राइस था. Now the price of Pepsi let's say has fallen to $5. तो आपके पास कुछ extra income बच जाती है only because the price has fallen, not because the income has increased but because the price has fallen. तो आपके consumption पे जो भी फर्क पड़ेगा because of this change in income will be called as the income effect. बेसिकली आपकी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है बिकॉज पेप्सी का प्राइस फॉल कर गया है. सो बिकॉज ऑफ दिस extra income that now you have because the price of Pepsi has fallen, you would want to consume more of Pepsi, right? Because now you feel that your income has increased. इनकम आपकी मॉनेटरीली इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन आपकी इनकम की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है. सो बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट you will want to buy more of Pepsi and more of pizza. This is called as the income effect. Change in the consumption because the purchasing power of your income has changed is called as the income effect. What is substitution effect? Substitution effect का मतलब है कि अब आपके पिज्जा का प्राइस पेप्सी का प्राइस फॉल हुआ है, लेकिन पिज्जा का प्राइस उतना ही है. पिज्जा का प्राइस जो पहले था वही अभी भी है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप रिलेटिव प्राइसेस को देखते हो, जब आप ये बोलते हो कि नाउ द कंजम्पशन ऑफ पेप्सी हैज बिकम रिलेटिवली चीपर देन द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा.
सो सब्सटीट्यूशन का मतलब है जब आप एक कमोडिटी के लिए किसी और कमोडिटी को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि अब जो है पेप्सी सस्ती हो गई है, पेप्सी चीपर है, तो पेप्सी कंज्यूम करना ज्यादा चीप है, इसीलिए यू माइट वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ पेप्सी एंड लेस ऑफ पिज्जा. दिस इज कॉल्ड एज द सब्सटीट्यूशन. ठीक है. इनकम इफेक्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन में इफेक्ट है दोनों ही कमोडिटीज पे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अगर दोनों कमोडिटीज नॉर्मल कमोडिटीज है, रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस. बिलीविंग कि बोथ पेप्सी एंड पिज्जा आर नॉर्मल गुड्स, हम बोल रहे हैं कि जब प्राइस पेप्सी की फॉल कर रही है तो आपकी सेम लेवल ऑफ इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, और इस इंक्रीज इन परचेजिंग पावर को आप दोनों कमोडिटीज पे यूज कर सकते हो, और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करोगे क्योंकि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, तो आप चाहोगे कि आप पेप्सी और पिज्जा का कंजम्पशन इंक्रीज करो. ये कहलाता है इनकम इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि अगर पेप्सी का प्राइस फॉल हुआ है तो पेप्सी रिलेटिवली चीपर हो गई है एज कंपेयर टू पिज्जा, सो यू माइट वांट टू सब्सटीट्यूट योर कंजम्पशन फ्रॉम पिज्जा टू पेप्सी. So that might lead to an increase in consumption of Pepsi and decrease in the consumption of pizza. Basically, price effect is equivalent to the addition of income and substitution effect. तो अगर मैं इसको summarize करके लिखूं for both Pepsi and pizza, and यहाँ पे मैं लिखूं income effect, substitution effect and total effect, total price effect, तो मैं क्या देख सकती हूँ? इनकम इफेक्ट की वजह से पेप्सी पे अगर प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल कर रही है तो पेप्सी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, पेप्सी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा. सिमिलरली पिज्जा पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बिलीविंग कि बोथ पेप्सी एंड पिज्जा आर नॉर्मल गुड्स. हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों नॉर्मल गुड्स हैं. नॉर्मल गुड्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर करते हैं इनकम के साथ. अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है. तो अगर पेप्सी का प्राइस फॉल कर रहा है तो इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर दोनों ही पेप्सी और पिज्जा का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा? पेप्सी बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन पिज्जा, सो डेफिनेटली पेप्सी के लिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीज होगी पेप्सी की कंजम्पशन, लेकिन पिज्जा की कंजम्पशन फॉल करेगी बिकॉज पिज्जा बिकम्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव देन पेप्सी. जब पेप्सी का प्राइस फॉल करता है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलेगा कि कंजम्पशन ऑफ पिज्जा शुड बी डिक्रीज्ड. अब अगर हम बात करें कि टोटल प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पेप्सी के कंजम्पशन पे दोनों इफेक्ट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, तो फाइनल इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर आप पिज्जा के कंजम्पशन की बात करो तो यहां पे आप देख रहे हो कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो फाइनल इफेक्ट यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, विच मीन्स कि अगर पेप्सी की प्राइस फॉल करती है तो whether the consumption of pizza increases or decreases depends on the income and substitution effect. If price of Pepsi falls, then definitely the consumption of Pepsi will increase if Pepsi is a normal good. लेकिन पिज्जा का कंजम्पशन फॉल करेगा या इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है कि इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट ज्यादा भारी है, किसकी वेटेज ज्यादा है. So that is why I said, when I was talking about the price effect in the previous lecture, I said that there can be different possibilities for the new equilibrium when we are talking about price changes. And that is, you can have one case where both Pepsi and pizza ka consumption increases. That is case one. The other case that you can have is that Pepsi consumption increases and pizza's consumption decreases. That is the second possibility. So it all depends on whether the income effect is greater than substitution effect or income effect is less than substitution effect. If the income effect is greater than the substitution effect, then the consumption of pizza will increase. लेकिन अगर income effect substitution effect से less than है तो पिज्जा का consumption decrease करेगा. So basically,
whenever the price of one commodity changes, we can have different possibilities for the new equilibrium, provided the two goods are नॉर्मल गुड्स. अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, जहां पे हमने देखा था कि पेप्सी का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है नए इक्विलिब्रियम पे, जो कि हमेशा होगा, दोनों ही केसेस में पेप्सी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा. इस केस में हमने देखा था कि पिज्जा का कंजम्पशन फॉल हो रहा है. सो दिस इज द केस व्हेन इनकम इफेक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. You can have another equilibrium possibility where income effect is greater than the substitution effect, जहां पे आप नोटिस करोगे कि दोनों पिज्जा और पेप्सी का कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो रहा है. राइट, सो समथिंग लाइक दिस. This is initial equilibrium and this is your new equilibrium. You will notice that at the new equilibrium, both Pepsi and pizza consumption is increasing. This is the case, this is the first case, जहां पे इनकम इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर देन है. Whereas जो हमने पहले बनाया था डायग्राम, यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज लेस देन द substitution. And let's look at how to understand the income and substitution effect graphically. So I said that this is your previous budget line and ये जो है ये आपकी changed budget line है when the price of Pepsi is falling. ठीक है. Now graphically आप कैसे इस चीज को represent कर सकते हो? Suppose this is your initial equilibrium point. ठीक है. And this is your final equilibrium point. We say that change in the consumption of from point A to point B, this entire change is called as the price effect. हम इस प्राइस इफेक्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. वन इज कॉल्ड एज द इनकम इफेक्ट एंड द अदर इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नाउ ग्राफिकली इस चीज को हम कैसे शो कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि आप इनकम कांस्टेंट रख रहे हो लेकिन रिलेटिव प्राइसेस चेंज कर रहे हो. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का यही मतलब है कि एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के कंपैरिजन में चीपर या एक्सपेंसिव हो रही है और उसके रिजल्ट में जो कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा वो आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में शो कर रहे हो. नाउ दैट विल अकर व्हेन द स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंजेस. हम इनकम कांस्टेंट रख रहे हैं एंड वी आर ओनली चेंजिंग द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. वो कैसे होगा? जब मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे नई बजट लाइन के स्लोप को इंटरसेक्ट करूंगी. सो द स्लोप ऑफ द न्यू बजट लाइन इज दिस. यहां पे प्राइसेस, रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो रही हैं. व्हेन आई प्लॉट अ न्यू बजट लाइन विच इज पैरेलल टू द चेंज्ड बजट लाइन, जो ये नया वाला बजट लाइन है उसके पैरेलल मैंने एक यहाँ पे बजट लाइन प्लॉट करा है और पुरानी इंडिफरेंस कर्व को ये जहां पे भी टेंजेंट होगा that point will be called as the substitution point. पॉइंट ए से पॉइंट सी का जो चेंज है उसको हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. एंड इनकम इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी. पॉइंट सी और पॉइंट बी में क्या चेंज हो रहा है? पॉइंट सी और पॉइंट बी में सिर्फ इनकम चेंज हो रही है. पॉइंट सी और पॉइंट बी में प्राइसेस सेम है क्योंकि आप सेम स्लोप पे हो बजट लाइन के, लेकिन इनकम चेंज हो रही है. सो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी विल बी कॉल्ड एज द इनकम इफेक्ट. एंड यू विल नोटिस दैट सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम विल अल्टीमेटली गिव यू द टोटल प्राइस इफेक्ट. टोटल प्राइस इफेक्ट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज प्राइस इफेक्ट. मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी is substitution and movement from point C to point B is income effect. तो ग्राफिकली हम सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, वी कैन नाउ डिराइव, वी आर एट अ स्टेज ऑफ कंज्यूमर थ्योरी जहां पे हम फाइनली डिमांड कर्व के डेरिवेशन की बात कर सकते हैं. हमें पता है कि डिमांड कर्व कंज्यूमर्स का होता है, इट इज पार्ट ऑफ दिस डिमांड साइड. सो
let's look at how can we derive the demand curve from the discussions from the theory that we have established so far. तो डिमांड कर्व पे वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस होती है, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी होती है. लेट्स से कि हम यहाँ पे पेप्सी का डिमांड कर्व प्लॉट कर रहे हैं. What will you notice? You will see, let's take a price for Pepsi जो कि ये बजट लाइन represent कर रही है, and this is the consumption of Pepsi at this price of Pepsi. हम किस तरीके से डिमांड कर्व प्लॉट कर सकते हैं? सो सपोज एट दिस बजट लाइन प्राइस ऑफ पेप्सी इज एट पॉइंट P1. ठीक है, वी विल नोटिस कि दिस इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड एट P1 प्राइस. सो यहां पे जो भी क्वांटिटी होगी वो इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग में मार्क कर दूंगी. ठीक है, लेट्स से दिस इज Q1. नाउ लेट्स इमेजिन, सो दिस इज वन पॉइंट दैट वी हैव गॉट in the demand curve here. This is the demand curve that we are plotting and this is the consumer theory जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. हम बेसिकली देख रहे हैं कि इस वाली थ्योरी से हम कैसे डिमांड कर्व तक पहुंच सकते हैं. Now let's say the price of Pepsi falls. ठीक है, and we will plot a new budget line here in the consumer theory diagram. When price of Pepsi falls, let's say the price falls to P2. यहाँ पे डिमांड कर्व में मैं यहाँ पे प्राइस फॉल कर सकती हूँ P1 से P2. You will notice that when the price of Pepsi falls from P1 to P2, you will reach a new equilibrium point. Let's say this is the point that you have reached. And at this point, you will notice that you are now consuming a higher level of Pepsi, let's say Q2. Corresponding to P2, I can then plot a point Q2 here. And I have got a new point on the demand curve here. ठीक है, सिमिलरली मैं दोबारा प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल कर सकती हूँ टू लेवल से P3. अगेन द बजट लाइन विल टिल्ट इन दिस डायरेक्शन एंड अगेन यू विल नोटिस दैट अ न्यू कंजम्पशन पॉइंट विल बी अटेन्ड. सो आई कैन अगेन मूव टू अ पॉइंट P3 एंड से कि एक नया कंजम्पशन पॉइंट आएगा C, राइट? एंड एट C आई एम सेइंग दैट दिस इज Q3. When I will join all these points, what I will get is called as the demand curve. डिमांड कर्व फॉर पेप्सी. एंड यू विल नोटिस कि ये जो डिमांड कर्व हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 21 में. So the theory of consumer choice is basically the background or the foundation of this demand curve that we have been discussing so far. So basically each point on the demand curve reflects the equilibrium consumption, reflects the consumer choice that is based on the indifference curve and the budget line. तो डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर डिसीजन वाले पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस थ्योरी वी कैन यू नो डिराइव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो यूजुअली हम बाकी के चैप्टर्स में पढ़ रहे थे. क्वेश्चन, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द 3 एप्लीकेशंस ऑफ the income and substitution effect. The first application is that do all demand curves slope downward. Now अभी तक जो भी डिमांड कर्व्स हम पढ़ते आए हैं, we have seen a peculiar nature of the demand curves, which is that demand curves are downward sloping, right? यहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है और हम बोलते हैं that demand curves are downward sloping. The application here of income and substitution effect is कि क्या कोई एक ऐसी possibility हो सकती है जहां पे demand curves upward slope. So we will explore whether there can be a possibility where demand curves are upward sloping. And in fact there are certain goods जहां पे demand curve upward sloping होता है. Downward sloping demand curve की बात करी थी. हमने बोला था that बेसिकली हमने जो बजट लाइन और कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व वाली एनालिसिस से हमने डिमांड कर्व को डिराइव करने की कोशिश करी थी और हमने देखा था कि जब प्राइस डिक्रीज होती है, सो व्हेन द बजट लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम ए बी टू ए प्राइम बी, इसका मतलब है कि इस कमोडिटी की जो वाई एक्सिस पे कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है. वी सॉ दैट विद द डिक्रीज इन प्राइस द कंजम्पशन
of commodity Y increases and hence we say that the demand curve is downward sloping. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, with the decrease in price, is it possible that the consumption also decreases? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी. बेसिकली वी से दैट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज. इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज. सो क्या इस एनालिसिस में, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें जब प्राइस फॉल हो, meaning that the budget line shifts from AB to A prime B, is it possible that the equilibrium shifts in a way such that the consumption of this commodity on y-axis decreases? And we'll see कि ऐसे कौन से केसेस में होता है कि जब प्राइस डिक्रीज होए, माने बजट लाइन शिफ्ट हो AB से A प्राइम B पे और आपका इक्विलिब्रियम shift हो point 1 से point 2 में, and you will notice that if you compare the initial equilibrium with the new equilibrium, you will notice that the consumption of commodity Y has actually fallen, which means कि जब price decrease हो रहा है then quantity is also falling, which is this case, an upward sloping demand curve where prices and quantity share a direct relation. We talked about the bifurcation of the price effect into income and substitution effect, right? And we said that for the same commodity, believing that the commodity is a normal good. Remember we said कि अगर कोई commodity normal good होती है तो उसके लिए income effect हमेशा positive होता है. Positive का क्या मतलब है कि अगर prices, meaning कि अगर income increase हो रही है तो consumption भी increase होगी. Income और consumption में direct relationship होता है. So if I talk about a change in price, let's say the price of a certain commodity is falling, ठीक है? So when a price of a certain commodity falls, we say that purchasing power of the consumer increases. अगर किसी commodity का price fall होता है तो with the same level of monetary income, now you can purchase a larger unit of goods. तो आपकी जो income है उसकी purchasing power बढ़ जाती है अगर price decrease होता है. So अगर आपका good normal good है, then you will notice कि इस इंक्रीज इन इनकम की वजह से क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज होगी, राइट? एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है दैट अगर जिस भी कमोडिटी की आप बात कर रहे हो उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है, सो ये कमोडिटी relatively cheaper as compared to the other commodity in the consumption bundle and hence you will consume more of this commodity. So यहाँ पे भी you will notice that your consumption increases. अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो इनकम इफेक्ट की वजह से उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से टोटल इफेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग होता है. टोटल इफेक्ट विल बी इंक्रीजिंग एंड हेंस वी से that with a fall in price the consumption increases. This is the usual explanation for a downward sloping demand curve, which is inverse relationship between prices and quantity. लेकिन this is only true for cases जहां पे आपका good एक normal good है. अगर suppose the good in consideration is an inferior good, सपोज हम नॉर्मल गुड की जगह इंफीरियर गुड की बात करें तो क्या चेंज होगा इस एनालिसिस में? अगर इंफीरियर गुड की प्राइसेस फॉल कर रही हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड्स, बाय डेफिनेशन वी नो कि इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर इनकम फॉल होती है तो कंजम्पशन बढ़ती है और इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर के बढ़ने की वजह से सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड द कंजम्पशन वुड फॉल एंड बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिकॉज नाउ ये वाली जो कमोडिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीजिंग ही रहेगा. बट अब आपका क्या हो रहा है? अगर आप इस एनालिसिस से इसको कंपेयर करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों चीजें इंक्रीज हो रही थी. इनकम इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए रिजल्टिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग था. लेकिन सेकंड केस में इनकम इफेक्ट
की वजह से कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है। तो फाइनल इफेक्ट इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग अगर होगा तो फिर एक यूजुअल डिमांड कर्व मिलेगा, दैट इज प्राइस डिक्रीज की वजह से कंजम्पशन डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपका फाइनल इफेक्ट डिक्रीजिंग है तो आपको एक पॉजिटिव डिमांड कर्व का रिलेशनशिप मिलेगा, विच इज की प्राइस डिक्रीज की वजह से क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। और वो कब मिलेगा? जब इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो व्हेन income effect is greater than substitution effect for a given good, such goods are called as given goods. Goods which share a positive relationship with quantity or goods which have a positive demand curve are called as given goods. इस तरीके के goods का special नाम है economics में, which is given goods. So whenever income effect is greater than substitution effect for an inferior good, we will get this case of positive sloping demand curve. Given goods are always inferior goods. अगर किसी डिमांड कर्व का शेप पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो वो हमेशा इंफीरियर गुड्स होते हैं, और ऐसे इंफीरियर गुड्स जिनके लिए इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ऐसे केसेस में हमें डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग मिल सकता है। तो ये ट्रू नहीं है that always the demand curve will be downward sloping. It is not necessary that the demand curve will slope downwards always. There can be cases when the demand curve slopes upwards. Then the second application is how do wages affect labor supply. तो हमने जो ये कंज्यूमर थ्योरी की बात करी है, इसके एप्लीकेशंस हम इन केसेस में भी पढ़ सकते हैं where we are talking about labor supply. तो इफ यू रिमेंबर, जब हम अपने बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस की बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो गुड्स लेते हैं। अब हम दो गुड्स लेने की जगह हम ले रहे हैं लेजर एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू गुड्स वी आर नाउ टेकिंग लेजर एंड कंजम्पशन ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस। सपोज वील अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थ्रू an example. Suppose there is a person who is working for 100 hours per week, ठीक है। एक हफ्ते में 100 hours के लिए ये पर्सन काम करता है, एंड बाकी टाइम, वीक के बाकी टाइम में दिस पर्सन indulges in leisure activities. Leisure activities अलग अलग तरीके की हो सकती है, मे बी वॉचिंग टेलीविजन और गोइंग आउट फॉर प्लेइंग समथिंग, so on and so forth. So 100 hours per week the person is working, and the rest of the time he or she is indulging himself or herself in leisure activities. For every hour that this person is working, the wage rate that he gets is $50. ठीक है। सो हर घंटे जितने घंटे काम किया उसके लिए $50 इस पर्सन की वेज है, ठीक है। So if I had to plot a budget constraint for this person, then suppose the person involves entire 100 hours, these 100 hours are the total number of hours available for this person per week, ठीक है। इसमें से कितने घंटे वो काम करता है ये हम अभी देखेंगे। The 100 hours per week is the available time that the person has in a given week, and he has two options. One option is that he can work and earn some money, or he can not work and indulge himself in a leisure activity for which he will not earn anything. तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। अब इन 100 घंटों को वो किस तरीके से एलोकेट करता है वो हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। So basically the amount of time for which he is working is basically the time that he is allocating to labor supply. That is the time for which he is giving his labor. On the x-axis, we are measuring leisure by number of hours allocated to leisure, and y-axis पे हम मार्क कर रहे हैं कि कितने टाइम वो काम कर रहा है और उस टाइम के करस्पॉन्डिंग कितनी मनी अर्न कर रहा है, and obviously whatever money he is earning will get translated into consumption.
So suppose the person decides to not work at all. The person decides that he doesn't want to work at all and he spends the entire 100 hours indulging in leisure. So एक point, extreme point जो हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, where he is spending entire 100 hours in leisure and not earning anything. Zero amount earn करेगा और 100 hours leisure में spend करेगा. ठीक है. Suppose दूसरा extreme point है कि he decides to not enjoy at all and only work for the total 100 hours available with him in a specific week. So if for the entire 100 hours he is working, then he will get 0 hours for leisure and the amount of consumption or the amount of money that he will earn will be equal to 100 into 50, which is 5,000. So these are the two extreme points that the person will get. 0 hours of leisure का मतलब है कि पूरे 100 hours he is working and hence earning 100 into 50, which is 5,000. The other option is, the other extreme is that he works for, he enjoys the entire 100 hours and not work at all. So he will get 0 level of income, 0 level of consumption and 100 hours of leisure. तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमको पर्सन की बजट लाइन मिल जाएगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर सप्लाई. ठीक है. नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ डू वेजेस अफेक्ट लेबर सप्लाई. इसका मतलब है कि वेजेस पे लेबर सप्लाई का क्या इफेक्ट होता है. मतलब कि अगर वेजेस इंक्रीज हो, वेजेस क्या है यहाँ पे, $50 per hour is the wage rate. This is the amount of money that the person is earning on an hourly basis. So this is called as the wage here. Suppose the wages increase. Suppose the wages increase to say $60 per hour. Question is कि क्या $60 पे जब wages increase होती हैं तो क्या ये person अपना labor supply increase करेगा या decrease करेगा? That is the question. Question is how do wages affect labor supply? So with the change in wages, what is the change in labor supply that the person experiences? So if the wages increase from $50 per hour to $60 per hour, what do you think would happen to labor supply? Would the labor supply increase or would the labor supply decrease? पहले देखते हैं कि हमारी जो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस है उसमें किस तरीके से चेंज होगा जब वेजेस इंक्रीज होंगे. तो हमारी इनिशियल बजट लाइन थी ये 100 and 5,000. यहाँ पे हम कंजम्पशन मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे लेजर. अब अगर $50 से वेज रेट इंक्रीज हो गई है $60 पे तो बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट होगी, इस तरीके से. ठीक है. बिकॉज नाउ विद 0 यूनिट्स, अगर वो पूरे टाइम काम करता है और 0 आवर्स लेजर में स्पेंड करता है तो वो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी गेन कर सकता है, 6,000. बिकॉज अब उसके पास हर घंटे के लिए $60 मिल रहे हैं और अगर वो पूरे 100 घंटे काम में लगाता है और लेजर में 0 आवर्स लगाता है तो उसको $6,000 अर्न कर सकता है. सो द बजट लाइन विल शिफ्ट इन दिस फैशन. नाउ अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेबर सप्लाई प्लॉट कर रहे हैं. सो आई हैव वेजेस ऑन द वाई एक्सिस एंड हियर आई हैव लेबर सप्लाई. मेरे पास यहाँ पे दो केसेस हैं. पहली वेज है 50, दूसरी वेज है 60. 50 वेजेस के लिए ये वाली बजट लाइन थी, इनिशियल बजट लाइन. लेट्स से द इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, let's say 50 hours of leisure and 50 hours of work, which will give him $2,500. So let's say the equilibrium at the first point is this. Now correspondingly यहाँ पे मैं प्लॉट कर सकती हूँ 2,500 लेबर सप्लाई और let's say consumption. ठीक है. Now that the wages has increased to 60, there can be two possible outcomes. One possible outcome is this, where with the increase in wages, the number of hours allocated to leisure decreases. So instead of 50 hours of leisure, now you are involving yourself in leisure activities for 40 hours, which means कि बाकी के 60 hours आप काम कर रहे हो. And if you are working for 60 hours, then you will get 60 into 60, which is 3,600.
right? So one possibility is that labor supply will be upward sloping, which is quite obvious. I mean, you can think of reasons why when wages increase, labor supply would increase, because people might want to earn more. And now that wages are increasing, hourly wage rate is increasing, people might want to work for long. This is the usual case. The other possible case is, so if initially ये person, if this is the initial equilibrium, this is the new equilibrium, initially ये person 50 hours of leisure enjoy कर रहा था और 2500 consumption earn कर रहा था, but now when the price increase, he decides to increase his leisure from 50 to say 70, which means that he is only working for 30 hours. In this particular case, what will happen? Supply will be downward slope. At $50 per hour, आप ज्यादा काम कर रहे थे and hence your labor supply was higher, whereas at $60 per hour your labor supply has fallen. So your labor supply curve would be downward sloping in such a scenario. So there are two possibilities, that when wages increase from 50 to $60, you can have an upward sloping upward sloping labor supply curve, or you can have a downward sloping labor supply curve. Both the possibilities exist. What is happening to the two commodities, leisure and consumption? अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम इफेक्ट से क्या पता लगेगा, लेजर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर लेजर एक नॉर्मल गुड है तो इनकम के इंक्रीज होने की वजह से लेजर इंक्रीज होना चाहिए. अगर आपकी इनकम बढ़ रही है देन ऑब्वियसली आप अपना लेजर एक्टिविटीज भी इंक्रीज करना चाहोगे. सो इनकम इफेक्ट का पॉजिटिव इफेक्ट होगा यहां पे लेजर पे. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर आपका वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो फॉर एवरी आवर दैट यू आर इंडल्जिंग इन अ लेजर एक्टिविटी यू आर लूजिंग अ हायर अमाउंट ऑफ मनी. मतलब अगर आपके पास 1 घंटा है और आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप 1 घंटे में टीवी देख लो या आप 1 घंटे काम करके $60 अर्न कर लो. तो पिछले सिनेरियो में आप 1 घंटे में $50 लूज कर रहे थे, अब आप 1 घंटे टेलीविजन के बदले में $60 लूज कर रहे हो. तो आपकी जो लॉस है बाय इंडल्जिंग इनटू लेजर फॉर एन एक्स्ट्रा आवर इज नाउ इंक्रीजिंग. So with the increase in wage rate, because of the substitution effect, because now earning becomes more attractive than leisure, then it is possible कि आपका substitution effect negative हो, मतलब wages के increase की वजह से leisure decrease हो because of the substitution effect. But because of the income effect it will be positive. Income effect का मतलब है कि अब मैं ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूं तो मैं ज्यादा leisure activities में involve कर सकता हूं. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अब जो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेजर में दे रहा हूं उसके बदले में मुझे ज्यादा वेजेस खोने पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे कम लेजर में इन्वॉल्व करके ज्यादा काम करना चाहिए. सो फॉर द लेजर these are the kind of relationships that you will have for the income and substitution. Then the two cases here, यहां पे आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि इस सिनेरियो में जब वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लेजर डिक्रीज हो रहा है, राइट? 50 आवर्स से 40 आवर्स का लेजर हो रहा है. तो ये क्या केस होगा? When the substitution effect is greater than income effect. और इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कौन सा इफेक्ट ज्यादा है? इस वाले केस में इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका लेजर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन फॉल हो रही है और इसीलिए आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व मिल रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि इस स्पेसिफिक केस में जब लेबर सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है, वेयरएज पिछले केस में जहां पे लेबर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा था एज कंपेयर टू द इनकम इफेक्ट.